for attendance. Those who have joined, please write in the chat box your name and class roll number for attendance. We will start our class at 9:33 a.m. We'll wait for 2 minutes so that people can join. Then we will start our class. Okay, sir. Okay, okay. By that time, you all do one thing in the chat box. Please write your name and class roll number for attendance. It's 9:32. We will wait for 1 more minute. Shagni Gadak is writing good morning, sir. Good morning. Morning. I repeat, those who have not given their attendance, please write your attendance in the chat box. Name and class roll number. Okay, it's 9:33 a.m. Now I will start the class. Fine. Let me present my screen first. Can any one of you can tell me whether my screen is visible or not? Yes, sir. Visible. Yes, sir, Yes, sir. visible. Visible. Is it visible? Fine. Okay. Let me do the complete slideshow first. Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Sir, voice is not coming. Sir, voice is not coming. Okay. Now am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay. So let us start. So as you all know, I think you might have seen your class timetable, and you have seen that I will be taking your design of machine element subject. So in July month, since it is online classes going on, I am having one period on Monday. I did not took the class because of some personal issues were there. So and one class I will take on Thursday. Monday I think it is around 3 to 4 p.m. and Thursday is from 9:20 to 10:20 a.m. Fine. So for July month, this will be the schedule. I don't know, it might change in the August month when the physical class will start. Fine. At present, the schedule will be on Monday, I will be taking the class from 3 to 4 p.m. and on Thursday, I will be taking the class from 9:20 a.m. to 10:20 a.m. Fine. And this subject will be shared by Shudipto Dev sir. Fine. Means 50% portion he will teach and the remaining 50% portion I will teach. I think sir might have told you about the syllabus for this subject. Hello. Yes, sir. I think sir might have told you a brief syllabus of this subject. Yes or no? If he Yes, hasn't sir. told, then I will tell you. Have you told the brief syllabus of the subject? Repeat one more. I am telling Shudipto sir has told the overview of the subject. What will be the syllabus? What all things are there in this subject? Has he told? Hello. Sir, Yes, sir. you told sir one.
एक एक करके बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो। सर आप एक बार बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके 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 फाइन। So, see, this subject basically we call this subject as machine design. So there are having two parts: machine design 1 and machine design 2. Design 1 you will be studying in this semester, and design 2 you will be studying in the next semester. Fine. And the subject code for this subject is ME502. Now let us talk about the books which you have to refer. I am talking from my part. I don't know what Shudipto sir has told. I am talking from my part. For my part, this is the most important book which you should have. Better you should purchase it, because in the later stage, I think all of you will be giving appearing for gate examinations, for other PSUs, for other competitive examinations. This book is like a bible for machine design. Design of Machine Elements by VB Bhandari, TMH publication. Better you buy this book. This book is available in the library also, but at present you cannot avail the library. If you can avail from ebooks, it will be fine. If you can't avail, better you purchase it, because आगे जाके जब आप गेट का प्रिपरेशन करोगे, आप पीएसयूज के लिए प्रिपरेशन करोगे, ये बुक हमेशा काम आएगा आपके लिए। और ये जो किताब है, ये किताब में आपको हर मॉड्यूल में, हर चैप्टर में 10 से 15 एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए मिलेंगे, लेकिन 10 के 15 एग्जाम्पल जो होगा वो अलग अलग वैरायटी का होगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा। But I think sir, Shudipto sir might have told you about that RS Khurmi book. Yes or no? Yes, sir. RS Khurmi. RS Khurmi, that book is also good, but the problem is that अभी आप पढ़े ही हो आरएस खुरमी, आपका थ्योरी ऑफ मशीन में, दैट एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के डेटा चेंज करके वो 2-3 बार रिपीट कर देगा। हाँ सर। तो यस सर, उससे क्या है, क्वेश्चन का उससे टाइप कम रहता है सर हाँ, इसमें। उससे क्या एक ही है, क्वेश्चन क्वेश्चन का टाइप नहीं रहेगा, आप एक ही मतलब आप एक ही तरफ जाओगे, आपको वैरायटी नहीं मिलेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ ठीक है, फॉर पासिंग दिस सब्जेक्ट फॉर दिस सेमेस्टर, ओके यू कैन रेफर दैट बुक, बट अगर आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर गेट, इफ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई विल प्रेफर दिस बुक. I myself have purchased this book, and always I prefer this book only. Design of Machine Elements by VV Bhandari, TMH publication. 2-3 बुक पढ़ने से अच्छा एक ही बुक रहे आपके पास, लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्योंकि मेरा जो भी नोट्स होगा, मैं जो भी अभी पीपीटी आपको दिखाऊंगा या जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा, वो सब इसी किताब से ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेटर आप ये परचेस कर लेना। ये आपको प्रीतम ने खरीदा है। प्रीतम, कितने में खरीदा किताब? हाँ सर। कितने में लिया ऑनलाइन? सर 500। 500 में, ठीक है, 500 आप खर्चा कर सकते हो, ये आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फाइन, एंड आई विल रेफर यू सम मोर बुक्स. दिस इज द सेकेंड बुक, मशीन डिजाइन बाय शिगले, McGraw Hill publication. No need to buy this book. I am having the soft copy. If you want, I will give you the soft copy. And the third book is a textbook of machine design by Robert L. Norton. This is Prentice Hall publication. Again, no need to buy this book. If you want, I am having the soft copy. I will give you this book. But ये जो second और third book है, इसको आप तभी टच करोगे when your concept is clear from the first book, that is Design of Machine Elements by VV Bhandari. Otherwise ये दो फॉरेन ऑथर का किताब है, इसमें क्या है, डायरेक्टली वो सॉल्व करता है, 2-3 स्टेप जंप करता है, और ये सीजीएस यूनिट में सॉल्व किया हुआ है, एमकेएस यूनिट में सॉल्व किया हुआ है, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। Fine. If when you are confident with the first book, then only you go for second and third book. And if you feel that you want to get this book, you just tell me. I will give the soft copy of this book in your official WhatsApp group. Fine? Any doubt? हेलो? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज जो आपको लेना है, दिस इज द न्यू थिंग विच यू हैव, नो नीड टू परचेस, आई विल गिव यू, यू हैव टू गेट दिस PSG डिजाइन डेटा बुक.
अब कोई मेरे को बोल सकता है दैट व्हाई वी वांट दिस डिजाइन डेटा बुक? नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्यों चाहिए डिजाइन डेटा बुक, क्या काम होगा इसका इस सब्जेक्ट में? इफ एनीवन कैन से। हेलो, Yes. if anyone can say Yes, sir. that why Sir, we it is for require lab. this design data book? Yes, हेलो, Sir, Sir, it is for lab Haan. purpose. एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। Sir, is it for lab purpose? नो लैब के लिए तो दैट आई विल वी विल डू एनसिस पार्ट वंस द कॉलेज रीओपन्स, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन लैब कराने का मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज मैं यहाँ पे दिखा दूंगा करके एनसिस में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, बट आपके पास अब सॉफ्टवेयर है नहीं अभी फिलहाल, तो आपको प्रॉब्लम होगा। दैट वी विल डू व्हेन द ऑफलाइन क्लास स्टार्ट्स। बट सी दिस सब्जेक्ट Sir, इज व्हाट। हाँ बोलो। हेलो, किसी डिजाइन के लिए सर स्पेसिफिक सिंबलाइज कुछ चीजें चाहिए ना, तो उसी लिए। Yes, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी सर ने आपको पढ़ाया होगा शाफ्ट के बारे में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट पढ़ाया था कि नहीं लास्ट क्लास Yes, में? sir. फाइन, अब देखो, हाँ सर। अब बेसिकली दिस सब्जेक्ट, दिस मशीन डिजाइन सब्जेक्ट इज एन इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे को आप दुकान में मान लो आपको शाफ्ट लेना है, ठीक है, आपको शाफ्ट लेना है, तो शाफ्ट आप कैसे लोगे? पहले तो शाफ्ट मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर होने से पहले पहले उस शाफ्ट का डिजाइन, मतलब जो डिजाइन इंजीनियर है उसका एक ड्राइंग तैयार करेगा कि हाँ शाफ्ट का डाया विल बी से 40 mm, शाफ्ट का लेंथ विल बी अराउंड से 10 मीटर, समवॉट लाइक दैट। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि दैट शाफ्ट का लेंथ विल बी 10 मीटर, शाफ्ट का डाया विल बी 50 mm। अब शाफ्ट किस मटेरियल का बना हुआ होगा? इट कैन बी माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कौन से मेटल का बना हुआ होगा? वो कैसे पता चलता है? दैट वो पता चलता है फ्रॉम दिस डिजाइन डेटा बुक। इस डिजाइन डेटा बुक में whatever machine element you want to design, whether it is bearing, shaft, chain drive, belt drive, anything, any machine element, even a screw, bolt, nut, anything, some standard data दिए हुए हैं। For example, nut, if you want to design a nut, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नट किस मटेरियल का बना हुआ होगा। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है दुनिया में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ जो कस्टमर है वो आपको नट वो नट खरीदना चाहता है, वो नट को हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो नट वो आपसे लेगा, ठीक है, वो किस मटेरियल का होगा वो इस डिजाइन डेटा बुक में लिखा हुआ होगा कि हाउस होल्ड मटेरियल के लिए ये मटेरियल अवेलेबल है नट का। देन आप इस डेटा बुक को देख के देन यू विल डिजाइन दैट नट अकॉर्डिंग टू दैट मटेरियल। अब मान लो यू वांट टू डिजाइन से, चलो शाफ्ट का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने शाफ्ट एक बार डिजाइन कर लिया, ठीक है, उसको खरीद लिया, मैं उसको किसी चीज में यूज कर रहा हूँ, अब वो हमेशा के लिए वो सेफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज का कोई ना कोई फेलियर होता है, शाफ्ट का भी कोई ना कभी फेलियर होगा, तो फेलियर होगा दैट मींस तब हमको देखना पड़ेगा कि शाफ्ट इज मेड अप ऑफ डक्टाइल मटेरियल और इट इज मेड अप ऑफ ब्रिटल मटेरियल। इफ द शाफ्ट इज मेड अप ऑफ डक्टाइल मटेरियल देन व्हाट इज द फेलियर क्राइटेरिया, कब फेल होगा? वी नो फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दैट if a material is ductile it will fail after the yield point, yes or no? Hello, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. fine, it will fail after the yield point। अगर वो brittle material होगा then I know that in brittle material there is no yielding, it fail at ultimate tensile point। So all these things, all these informations are given in this design data book। अब मान लो आप रिवेट को डिजाइन कर रहे हो, रिवेट फाइन जो ब्रिज में लगता है, ठीक है, अब रिवेट का कुछ डायमीटर होगा, बहुत सारे डायमीटर, छोटा रिवेट होता है, बड़ा रिवेट होता है, मीडियम साइज का रिवेट होता है। तो जो स्मॉल साइज रिवेट होगा व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दैट रिवेट, जो मीडियम साइज रिवेट होगा व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दैट रिवेट, जो big size rivet होगा what will be the diameter of that rivet। all these informations are given in this design data book, and as a design engineer it is not possible for us to memorize all these data, never it is possible। दुनिया में इतना सारा कंपोनेंट है, हर एक का डेटा क्या आप याद रख सकते हो? that is not possible। so
you refer this design data book. Every time whenever you want to design something, you use this design data book. According to the given conditions, you use those data from this design data book, and ultimately you design your final product. आया समझ में that why we will be requiring this design data book, how to use this design data book in this subject? Is it clear? Hello. Yes, sir. It's clear. Fine. So Yes, sir. no need to purchase this design data book, because it is this design data book is around 400-500 pages. So no need to purchase. We will be requiring hardly in this semester for design part 1, we will be requiring hardly 50 pages. So that 50 pages, it is there in my slides. If not, then when the college reopens, I will give you the hard copy. You preserve it for your future purposes. Fine. And you will not be bringing those data book in the end semester examination. Why? Because आप उसमें लिख के लेके आओगे फॉर्मूला वगैरह कुछ कुछ, ठीक है, तो आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड किया जाएगा डिजाइन डेटा बुक, ठीक है. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. So let us move to the next part. Next is introduction to syllabus. इस स्लाइड में what I will do is that I will discuss my part syllabus, और बाकी सर के पार्ट का सिलेबस मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन मैं बोल दूंगा कि उनके पार्ट में क्या क्या चीज सर पढ़ाएंगे, और मेरे पार्ट का डिटेल सिलेबस मैं यहाँ पे आपको भी दिखा दूंगा. फाइन. सो बेसिकली आई विल बी कवरिंग टोटल 4 मॉड्यूल्स. I will be covering total 4 modules. This is your module number 1, which is general considerations in machine design. And this module is, you can say, 90% theory. And this is the only module in which you will get the theory. In remaining all other modules, everything is numerical derivation and all those things. ठीक है. Only जो module number 1 है, इसमें आपको 90% theory मिलेगा, 10% थोड़ा बहुत numerical मिलेगा. ठीक. So this module is general considerations in machine design. तो कोई मेरे को बोल सकता है कि what you understand or what you are understanding from this module? मैंने जो यहाँ पे लिखा है general considerations in machine design, आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में? Sir, about standard dimensions and all. Yes, what we will be studying is that what is machine design, how we implement machine design to any component, any common component, then what are the different types of machine design. Fine. Then what are the factors which a designer should keep in mind while designing any component. Then how to designate any material. For example, you are going to a shop and you want to purchase, say, a cast iron. You want to purchase a cast iron for some purpose. Then you will not tell to the shopkeeper that I want a cast iron. Then he will say that, okay, you want cast iron, you tell me the grade, which grade of cast iron you want. So you have to tell him that I want a cast iron of so and so grade. So those gradings we will be studying over here. If you want to purchase an aluminium, आप दुकान में जाकर थोड़ी ना ऐसा बोलोगे भाई मेरे को एल्यूमिनियम चाहिए. हाँ, एल्यूमिनियम चाहिए. अब एल्यूमिनियम का कुछ ग्रेड होता है. अब वो ग्रेड कहाँ से मिले पता चलेगा आपको? यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एल्यूमिनियम का कितना टाइप का ग्रेड होता है, कौन सा ग्रेड किस कंडीशन के लिए सूटेबल है, कौन सा ग्रेड किस कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है. ऑल दोस थिंग्स वी विल स्टडी इन मॉड्यूल नंबर 1. इज इट क्लियर व्हाट वी विल बी डूइंग इट इन मॉड्यूल नंबर 1? Yes, sir. Fine. Okay. Now let us move towards module number 2. What is module number 2? In module number 2, we will be discussing about different modes of failure and different theories of failure. Now, can anyone tell me what, by this name, what we will be studying in this module number 2? क्या बोल सकते हो ये नाम पढ़ के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 2 में? Sir, how failure will occur on a machine? Yes. Fine. Good. How? In module number 2, what we will be doing is that, see, आप कोई भी machine component ले लो, whether it is a gear, whether it is a bearing, whether it is a shaft, clutch, spring, कोई भी material ले लो, ठीक है. Basically material दो टाइप का होता है.
फर्स्ट वन इज डक्टाइल मटेरियल एंड सेकेंड वन इज ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अगर मटेरियल डक्टाइल है, मैं अगर किसी चीज को डिजाइन कर रहा हूं और मान लो मैं एक क्लच को डिजाइन कर रहा हूँ, क्लच का मटेरियल कुछ होगा, ठीक है, अगर वो क्लच का मटेरियल डक्टाइल है तो किस तरीके से वो फेल करेगा, डक्टाइल मटेरियल किस तरीके से फेल करेगा, दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। अगर शाफ्ट का मटेरियल ब्रिटल है तो ब्रिटल में कैसे फेलियर होगा, दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। दोज आर मोड्स ऑफ फेलियर, कैसे कैसे कोई भी मटेरियल फेल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। Fine. And second part that what we will be studying is different theories of failure. मतलब आज से तकरीबन मान लो 100 साल पहले, ठीक है, या 70 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी ऑफ फेलियर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शाफ्ट है, अगर शाफ्ट का मटेरियल डक्टाइल है, तो अगर वो डक्टाइल है तो किस थ्योरी के हिसाब से फेल करेगा, अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है तो किस थ्योरी के हिसाब से फेल करेगा, अगर किसी शाफ्ट में खाली बेंडिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो वो किस हिसाब से फेल करेगा, अगर किसी मेंबर में ओनली टेंशन एंड कंप्रेशन इज अकरिंग देन हाउ that member will fail. So there are different theories of failure that we will study in module number 2 including the numerical part. अब आया समझ में what is module number 2? Any doubt? Yes, sir. Any doubt? किसी को कोई डाउट है मॉड्यूल नंबर 2 में? No, sir. No, sir. Next, module number 3. Module number 3, what we will study is we will study about fatigue failure, we will be studying about stress concentration and its effects, then we will design our machine component for finite and infinite life, then we will study about different types of endurance diagrams, and lastly we will study about cumulative fatigue damage. Fine. This is module 3 is little bit big module. Fine. So अब module 3 को देख के क्या लग रहा है, हम क्या पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में? सर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो अलग चीज है, वो तो हम लोग मॉड्यूल 2 में ही पढ़ लेंगे। अगर मटेरियल Cyclic loading. कैसे फेल करेगा, ब्रिटल है तो कैसे फेल करेगा। मॉड्यूल 3 फटीग क्या होता है? Sir, cyclic loading. हाँ, फटीग फेलियर मतलब cyclic, when a cyclic load is acting on any component, then that component will subject to fatigue. Then how that fatigue failure is occurring and how we will be designing any component for that fatigue failure, that we will study. For example, मैं सबसे बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपको मान लो आपका घर हावड़ा में है, आप हावड़ा से कॉलेज आना चाहते हो, आपके पास साइकिल है, ठीक है, आप कंटिन्यूअस क्या साइकिल चला सकते हो 1 घंटा? मान लो वहां से कॉलेज तक आने में आपको 1.5 घंटा लगता है साइकिल में, क्या आप कंटिन्यूअस 1.5 घंटा साइकिल चला लोगे एक ही स्पीड पे? सर 1.5 घंटा सर 5 घंटा लग जाएगा। चलो मैं आप एक अज्यूम कर लो 1.5 घंटा लगता है फ्रॉम हावड़ा टू कॉलेज, आपको साइकिल में लगता है 1.5 घंटा। क्या आप उस 1.5 आवर में एट अ कांस्टेंट स्पीड कैन यू ड्राइव योर साइकिल? No, sir. नो सर। नहीं कर No, सकते, sir. ठीक है। आप क्या करोगे, आप मान लो आधा घंटा चलाए, चलाने के बाद फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पैर में फटीग होगा, आप थक जाओगे, धीरे धीरे थकोगे, आपका बॉडी थक जाएगा। दैट मींस योर बॉडी इज अंडरगोइंग फटीग, योर बॉडी इज अंडरगोइंग फटीग। बस कंटिन्यूअसली आप साइकिल चला रहे हो, कंटिन्यूअसली आप साइकिल चला रहे हो, यू कैन नॉट डू इट, फाइन, सो योर बॉडी विल अंडरगो फटीग, सो दैट इज योर फटीग फेलियर। अब अगर मैं बात करूं मान लो टेक्निकल टर्म में, आप एक वायर ले लो, ठीक है, घर में जो भी वायर होता है ना, छोटा वायर जो हम लोग इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, फाइन, आप क्या उस वायर को ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट में? मेरे को बताओ आप कैसे ब्रेक कर पाओगे, हाउ यू विल ब्रेक दैट वायर इनटू 2 पार्ट्स? सर कंटिन्यूअसली मतलब both the सर इधर उधर घुमा के मतलब कंडीशन हो नंबर जाएगा 1, सर। मैं उस वायर पे दोनों तरफ से दोनों एंड पे टेंसाइल लोड लगा रहा हूं, क्या वो वायर टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर मैं उस दोनों वायर पे कंप्रेसिव लोड लगाता हूं, क्या वो वायर टूटेगा बीच से? नहीं सर, नहीं नहीं, टूटेगा। तीसरा कंडीशन, नहीं नहीं नहीं
मेरे पास वायर है, मैं वायर के दोनों एंड को ऊपर नीचे घुमाता हूँ, रोटेट करता हूँ, क्या वो टूटेगा? एकदम सर। टूटेगा। टाइम अब वो लगेगा, कब टाइम टूटेगा? लगेगा। अब वो मान लो 2 घंटे के बाद भी टूट सकता है, 4 घंटे के बाद भी टूट सकता है, 10 घंटे के बाद भी टूट सकता है, 20 दिन के बाद भी टूट सकता है, 10 साल के बाद भी टूट सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या मटेरियल है, मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, मटेरियल का यील्ड पॉइंट कितना है, मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट कितना है, जो कि आप निकालोगे डेटा बुक से देख के। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको बोलते हैं फटीग फेलियर। आया समझ में? हेलो, यस सर। Yes, sir. what is fatigue failure? This is your fatigue failure. Next part is stress concentration and its effect. अब ये क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन? इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपके पास एक पेपर है, A4 साइज का पेपर है, ठीक है? आप उस पेपर को दोनों तरफ से पकड़ो, दोनों एंड से पकड़ो एंड ट्राई टू ब्रेक दैट पेपर इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम द मिडिल। क्या वो ब्रेक होगा? क्या वो ब्रेक होगा? सर और एक बार बोलिए। मेरे पास आई एम हैविंग A4 साइज पेपर, फाइन। At both the ends of the paper, I am applying a tensile load, same and equal tensile load at both the ends of the paper. My aim is I want to break that paper from the middle portion. Will it break? If yes, why yes? If no, why no? सर Sir, from the middle portion. हाँ, मिडिल पोर्शन से ही ब्रेक करना है, और कहीं से मेरे को नहीं चाहिए ब्रेक करना। मैं बिगिन मिडिल सर पोर्शन से ही मिडिल ब्रेक करना चाहता हूँ। मिडिल पॉइंट से वो ये जहाँ पर कंडीशन लोड दिया हुआ है, मिडिल कंडीशन से ही ब्रेक करना है। क्या ब्रेक होगा? बिना कुछ किए पेपर में, बिना पेपर में कुछ नहीं करना है, खाली दोनों पेपर के दोनों एंड पे आप टेंसाइल लोड लगाओगे दोनों हाथ से। पेपर है, एक हाथ को एक एंड पे पकड़ा पेपर के, दूसरे हाथ को दूसरे एंड पे पकड़ा, अब आप इक्वल टेंसाइल लोड लगा रहे हो, क्या पेपर टूटेगा बीच से? सर टूटेगा पर नहीं टूटेगा, तू करके देख ले, मैं बैठा हुआ हूँ, तू करके नहीं देख ले, नहीं टूटेगा। सर, नहीं टूटेगा। हाँ सर देखा। होगा सर, मैंने कर अगर दिया। टूटेगा, अगर टूटेगा, जो बोल रहा है टूटेगा, तो मैं उसको इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स दूंगा, मेरे पार्ट में फुल मार्क्स दूंगा अगर टूटेगा तो। सर नहीं मैंने टूटेगा, किया। नहीं टूटेगा ना, वो तो तू कुछ भी कर लेगा, तू साइड से फाड़ देगा, ये कर देगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना अभी। चलो, नहीं टूटेगा, लेकिन अब टूटेगा, कैसे टूटेगा मैं बता रहा हूँ। अब उस पेपर को आप बीच में कहीं पर भी आप एक होल कर दो। दैट होल का डायमीटर इज अप टू यू, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm। आपने होल कर दिया, अब आप दोनों तरफ पकड़ो, दोनों हाथ से दोनों एंड को पकड़ो, फिर आप उसको खींचो, क्या टूटेगा पेपर? हाँ हाँ होगा। पेपर टूटेगा, पेपर टूट जाएगा, पेपर जल्दी टूटेगा, पेपर जल्दी टूटेगा। दैट इज जल्दी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है किसी कंपोनेंट में दैट वो बहुत हार्ड है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, उसका यील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, we cannot break that component into 2 parts. Then what we do is that we put some holes inside that component or on the surface of that component. We put some grooves, groove काट लेता हूँ, होल बना देता हूँ, टी शेप का ग्रूव काट दिया। ये जो हम लोग ग्रूव बना रहे हैं, कभी सर्कुलर ग्रूव, समटाइम्स वी ग्रूव, समटाइम्स यू ग्रूव, दिस इज टू रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उस पॉइंट पे स्ट्रेस मैक्सिमम एक्यूमुलेट हो जाएगा जहां पे आपने ग्रूव काटा है, जहां पे आपने होल बनाया है। तब अब क्या करो, अब आप दोनों एंड से लोड अप्लाई करो, आपका मटेरियल बहुत जल्दी 2 पार्ट में टूट जाएगा। दिस इज योर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 3 में और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आया समझ में? यस फाइन, फाइन। हाँ सर। डिजाइन फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइफ ऑफ स्पेसिमेन। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपके पास एक कंपोनेंट है, फाइन। अब ये कंपोनेंट
दो कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1, component A is undergoing or is breaking within 10 days. Same component is breaking after 25 years. तो अगर कोई कंपोनेंट 10 दिन में ब्रेक हो रहा है, तब वो कौन सा पार्ट होगा? वो फाइनाइट लाइफ होगा कि नहीं होगा उसका? सर यस हेलो, सर. होगा. हाँ सर. कोई कंपोनेंट मान लो 20 साल, 15 साल, 1000 साल के बाद वो फेल हो रहा है, दैट मींस दैट विल बी इनफाइनाइट लाइफ. मतलब वो इनफाइनाइट लाइफ के बाद फेल हो रहा है. So how to design any component for finite life, how to design any component for infinite life, that we will study over here. अब क्लियर है? सर ये एक बार रिपीट कीजिए ना. रिपीट करता हूँ. मान लो आपने खरीदा मोबाइल फोन दुकान से, नया नया मोबाइल है, ठीक है. शुरू शुरू में तो कुछ होता नहीं है मोबाइल फोन को, सब बढ़िया चलता है. जैसे जैसे मोबाइल पुराना होता है, मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बैटरी उसका धीरे धीरे डेड होता है, डिस्प्ले खराब हो गया या कुछ हो गया. दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? मतलब मटेरियल का लाइफ धीरे धीरे बढ़ रहा है. जितना मटेरियल पुराना होते जाएगा उतना वो बेकार होते जाएगा. होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. हाँ. होगा. उतना बेकार होते जाएगा, मतलब उतना वो फेल, मतलब मटेरियल उतना फेल होने का कंडीशन बढ़ते जाएगा. मटेरियल का बढ़ेगा कि नहीं? मटेरियल जब नया होगा, मोबाइल फोन जब नया आप खरीदोगे, उसमें डिफेक्ट कम मिलेंगे आपको, मतलब फाइनाइट लाइफ. जैसे जैसे मटेरियल पुराना हो गया, ठीक है, उसमें बीमारी आपको मिल जाएगी धीरे धीरे करके. दैट मींस इनफाइनाइट लाइफ. मतलब कोई कंपोनेंट 10 दिन में फेल हो रहा है, कैसे फेल हो रहा है, कैसे उस कंपोनेंट को डिजाइन करना है, दैट इज डिजाइन फॉर फाइनाइट लाइफ. If any material is failing after 20 years, after 25 years, तो आप थोड़ी ना बैठे रहोगे 25 साल तक, भाई ये कैसे फेल हो रहा है, कैसे फेल हो रहा है, कैसे फेल हो रहा है. आप बैठ नहीं सकते हो. 25 years के बाद if that component is failing, we will categorize that component in infinite life condition. Clear? Yes sir. Yes sir. Fine. So this we will study in module number 3. And remaining two topics are endurance diagram. Endurance diagram मतलब मैंने क्या पढ़ा है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. अगर डक्टाइल मटेरियल है, देन फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आई नो दैट मटेरियल विल फेल आफ्टर यील्ड पॉइंट. And if that material is brittle, then again from stress strain diagram I know that material will fail after ultimate point. Fine. Similarly, if any component is subjected to cyclic load, that means if any component is subjected to fatigue failure, then again there will be some yield point, there will be some ultimate point. Those points we found out from this endurance diagram. इस एंड्योरेंस डायग्राम से हम जब मटेरियल का फटीग होता है, उसका क्या यील्ड पॉइंट होगा, उसका क्या अल्टीमेट पॉइंट होगा, वो हम निकालते हैं एंड्योरेंस डायग्राम से. देयर आर टोटल 3 एंड्योरेंस डायग्राम्स. वन इज योर सोडरबर्ग लाइन, one is your Gerber line, GERBER, Gerber line, and third one is your Goodman line. We will study these three lines in detail to get those ultimate points and yield points. अब आया बात समझ में? What is endurance diagram? कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को एंड्योरेंस डायग्राम में? हेलो? No sir. Okay. Last part that we will study in module number 3 is cumulative fatigue damage. अब ये क्या है, ध्यान से सुनो. मान लो आपके पास एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट को आप एक मान लो इंडस्ट्री में आप यूज कर रहे हो, ठीक है. शाफ्ट का लेंथ है मान लो 20 मीटर, अब उसको आप डिवाइड कर दो 4 पार्ट में. 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 4 5 मीटर. 5. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, शुरू का जो 5 मीटर है शाफ्ट का, वो कितने दिन में फेल हो रहा है. सेकेंड 5 मीटर ऑफ द शाफ्ट
when it is failing, third 5 meter of the shaft when it is failing, and the last 5 meter of the shaft when it is failing. If I combine all these fatigue failure, then that phenomena is called cumulative fatigue damage. That means यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, I divide my entire component into some parts, देन हर एक इंडिविजुअल पार्ट का मैं फटीग फेलियर निकालता हूँ, उसके बाद मैं चारों उन सब पार्ट्स को एक साथ समेशन करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मेरे पास फाइनली जो फटीग फेलियर आया पूरे कंपोनेंट का, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फटीग डैमेज। अब आया बात समझने, व्हाट वी विल बी डूइंग। यस सर सर। सर साबित तो एक ही चीज है, एक ही चीज है, उसका मतलब हाँ, पार्ट पार्ट डिवाइड करके कैसे डिटरमिन करेगा? कैसे कर सकते, अब देखो जरूरी तो नहीं है कि शाफ्ट का डाया एक ही हो सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शाफ्ट का डाया है 20 मिलीमीटर, then from point B to point C diameter of the shaft is 10 millimeter, then from point C to point D shaft का diameter is 30 millimeter, चारों का मटेरियल अलग अलग है, तब क्या चारों का फटीग फेलियर सेम होगा? नहीं, ये नहीं होगा। नहीं होगा, तो उसके लिए मेरे को क्यूमुलेटिव फटीग डैमेज लगाना पड़ेगा। तो जब हम कंपोजिट शाफ्ट यूज करते हैं, कंपोजिट शाफ्ट मतलब एक ही जगह पे वो सिंगल ही शाफ्ट है, सिंगल शाफ्ट ही है, लेकिन डायमीटर हर 2-2 मीटर 3-3 मीटर 10-10 मीटर के बाद चेंज हो रहा है, मटेरियल हर शाफ्ट का मटेरियल अलग अलग है, हर एक शाफ्ट का मटेरियल अलग अलग है उस कंपोजिट शाफ्ट में, देन we use this technique, that is cumulative fatigue damage, to design that shaft or any mechanical component। आया समझ में? यस सर। This is module number 3, and the last module that we will be the module number 4. Module number 4 is about design of welded joints। ये आपने पढ़ा होगा वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, पढ़ा है? नहीं सर। लैब जॉइंट तुमने किया है ना वर्कशॉप में, लैब जॉइंट, टी जॉइंट, ये सब किया तो होगा। नहीं सर। वो किया नहीं है? नहीं अच्छा सर। ठीक है, तो हम लोग मैं यहाँ बता दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को सर कोई किए नहीं है, सिर्फ पढ़े हैं। ओके, if I want to join two dissimilar metals or 3 or 4 dissimilar metals, मैं क्या टेक्निक यूज करता हूँ? मैं वेल्डिंग करता हूँ ना वेल्डिंग। अब वेल्डिंग का भी बहुत सारा टाइप्स है, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है। अब जब आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करोगे, फाइन, तो वहां पे एक जॉइंट बनेगा इन वेल्डिंग, टी जॉइंट, लैब जॉइंट, बहुत टाइप का जॉइंट होता है, फाइन। ऑल दोस थिंग्स वी विल स्टडी ओवर हियर, वी विल नॉट स्टडी द व्हाट इज वेल्डिंग और हाउ वेल्डिंग इज अकरिंग, वी विल स्टडी द डिजाइन पार्ट। जब एक बार वेल्ड कर दिया, कितना मैंने वेल्ड किया, कितने डेप्थ तक वेल्ड किया, अब उस वेल्डिंग पोर्शन में कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कौन कौन सा लोड लग रहा है, उस लोड के वजह से हमने जिस मेटल को, दो मेटल को ज्वाइन किया, वो कैसे फेल होगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। आया समझ में? यस सर। यस सर। Fine. And the last part, that is module number 5 from my side, is design of riveted joint and design of bolted joint। ठीक है, रिवेट जॉइंट, रिवेट तो सब लोगों ने देखा होगा आई गेस, देखा है कि नहीं है? देखा है रिवेट? हाँ सर। हाँ रिवेट कहाँ सर। लगता है? बोलो, रिवेट कहाँ सर लगता है? प्रेशर वेसल्स में लगता है थोड़ा। प्रेशर, अरे प्रेशर मतलब छोड़ दे, तू ट्रेन में जाता है, फाइन, ट्रेन में जब ब्रिज हाँ आता ट्रेन है, में दिखता है सर। तुम कोई भी ब्रिज पकड़ लो दुनिया का, हर ब्रिज में रिवेट लगा ही होगा, हाँ कि ना? हावड़ा ब्रिज सर। हावड़ा ब्रिज पकड़ लो, कोई भी ब्रिज पकड़ लो, उसमें देखो वहां पे रिवेट लगा हुआ होता है, एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जब जब आप ज्वाइन करते हो, उसमें रिवेट लगा हुआ होता है, फाइन। अब वो रिवेट कैसे लगता है, कितने टाइप का रिवेट होता है, अब जब आप एक मेंबर को दूसरे मेंबर से ज्वाइन किया, ठीक है, अब उस रिवेट पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ, क्या लोड है, किस लोड की वजह से रिवेट पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। आया समझ में? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. Fine. And the last topic is design of bolted joints. Design of bolted joints. अब आपने ये बोल्ट कहाँ देखा है? बोल्ट सर बोल्ट तो हर जगह दिखता है. बोल्ट तो हर जगह दिखता है, जाहिर सी बात है, आपने देखा ही है, बचपन से आप देखते आ रहे हो बोल्ट, ठीक है. तो उस बोल्ट को कैसे डिजाइन किया जाता है? बोल्ट का डायमीटर क्या होगा? बोल्ट का शेप क्या होगा? अब जब हम बोल्ट को किसी अप्लायंस में या किसी मैकेनिकल कंपोनेंट में हम यूज करेंगे तो किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट होता है उस बोल्ट पे, किस टाइप मतलब किस लोड की वजह से किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस बोल्टेड जॉइंट. Okay, sir. हेक्सागोनल बोल्ट होता है, ठीक है, पेंटागोनल शेप का बोल्ट होता है. पेंटागोनल शेप का ही क्यों होता है? हेक्सागोनल शेप का ही क्यों होता है? दूसरा शेप का क्यों नहीं होता है? ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स. ठीक है, हेलो, Yes, sir. फाइन. तो अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है. बोल्टेड, riveted and welded joints. Out of bolted, riveted and welded joints, which joint is permanent joint and which joint is temporary joint? Temporary joint means you can separate the parts. Sir, riveted joint is permanent joint. Sir, wait. Rivet Welded joint, joints are permanent. rivet joint permanent, welded joint Permanent, permanent, bolted joint Sir, welded joint permanent होगा. Temporary. Sir, welded bolted Temporary, sir. दोनों में Welded temporary joint. है. अरे कोई ना कोई एक परमानेंट होगा, कोई ना कोई इनसेपरेबल जॉइंट होगा. टेम्पररी कौन सा परमानेंट है तो कौन सा टेम्पररी है? आप लोगों ने तीनों चीज देखा है, अब आप Sir- दिमाग लगा के बताओ. वेल्डेड परमानेंट जॉइंट है और Yes, sir. बोल्टेड टेम्पररी जॉइंट है. बोल्टेड टेम्पररी जॉइंट है, Yes. ठीक है, ठीक है. अब मैं एक आंसर दे रहा हूँ, ठीक है. मेरा जो आंसर है, रिवेट जॉइंट एंड वेल्डेड जॉइंट्स आर परमानेंट जॉइंट. बोल्टेड जॉइंट इज अ टेम्पररी जॉइंट. क्यों? बोल्ट को आप खोल सकते हो, खोल Yes, सकते हो sir. कि नहीं? हाँ, बोल्ट खोल को आप सकते खोल सकते हो, स्पैनर वैनर लगा के आप खोल सकते हो, फाइन. रिवेट जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट को आप खोल सकते हो? ना, नहीं sir, नहीं. वेल्डेड जॉइंट को हम खोल तोड़ सकता हूँ सर. नहीं सर, तोड़ सकता हूँ, खोल नहीं सकता Sir, हूँ. Welded. हाँ. तो तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ना भी नहीं है. देखो परमानेंट जॉइंट मतलब क्या? तोड़ने के बाद सर खोलना होगा. Permanent joint means neither you cannot break it, neither by the use of any mechanical device such as spanner you can open it. That is the definition of permanent joint. तो welded joint and rivet joint को क्या आप तोड़ सकते हो, खोल सकते हो by using any mechanical device? नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता फिर No, तो sir. भाई हावड़ा ब्रिज को मैं रोज ही खोल देता, रोज उसको साफ सफाई करके फिर लगा देता, है कि नहीं? चलो यार, आज मन नहीं कर रहा है, आज मन नहीं चाहता कि लोग यहाँ से आना जाना करे, आज खोल देता हूँ हावड़ा ब्रिज को. That is not possible. That is not possible. So always similarly welded joint. जब आप एक when you join one metal with another metal by the help of welded joint, you can break it by the help of hammer. You can break it, fine, but you cannot open. You can means by the use of any device you cannot open it or something. और break कर दिया मतलब that is waste. That is waste. Again you have to weld it again. That means in bolted joint assembling and disassembling is possible, but in welded and riveted joint assembling and disassembling is not possible. Is it true? Yes, sir. Fine, ठीक है. Yes. So this is the overview of the syllabus which I will cover. ठीक है, Okay, ये sir. मेरा पार्ट है. और जो सर का पार्ट रहेगा आपका डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ स्क्रू जैक, then design of quarter joint, design of knuckle joint, design of spring and और एक दो पार्ट और है, मुझे याद नहीं आ न्यूमेरिकल रहा. भरा है सर इसमें या फिर थियोरेटिकल है ये सब? ये सब्जेक्ट 90% न्यूमेरिकल, 90 नहीं 95% न्यूमेरिकल, 5% थ्योरी. वो थ्योरी मेरे को मेरे जो मॉड्यूल नंबर 1 है इसी में मिलेगा तेरे को थ्योरी. बाकी मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 पूरा न्यूमेरिकल है, प्रूफ है, एनालिसिस है.
हम लोग जैसे मैंने तुम लोग को एक दिन बताया था, एनसीसी में हम लोग कर रहे थे ना ट्रस्ट एनालिसिस, बाद में फिर हुआ नहीं था ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो सब हम लोग एनसीसी में कर रहे थे सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम लोग मैनुअली करेंगे, ठीक यस है। सर। यस तो सर का Yes, पार्ट sir. रहेगा शाफ्ट, स्क्रू जैक, देन क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, कपलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, देन स्प्रिंग, ये सब रहेगा सर का पार्ट, ठीक। हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। और रहा Yes, sir. मेरा पीपीटी, तो फिलहाल तो दूंगा नहीं पीपीटी में। मैं क्या करूंगा, जैसे मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, जैसे मॉड्यूल नंबर 1 खत्म हो गया फिर तुमको पीपीटी दे दिया, मॉड्यूल नंबर 2 खत्म हो गया फिर पीपीटी दे दिया। लेकिन वही फिर मैं बार बार जो बात बोलता हूँ, मेरे पीपीटी पे आपको भरोसा नहीं करना है। Fine, you have to refer this book if you want to score good marks in GATE in competitive examination। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है वीवी भंडारी का। मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ के ही बनाया है, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ के ही मैंने ये बनाया है पीपीटी, बट फिर भी हो सकता है कुछ पार्ट छूट गया हो, 1-2 पार्ट, तो उसके लिए आपको किताब भी देखना है। मेरे पीपीटी में तो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, जस्ट अ मिनट वेट। What I was talking about is that in my PPT, you will not get all the solved problems or all the unsolved problems, but yes, I have covered the variety. But you have to, for practice, you have to see the book. ठीक है? हेलो, सर ओके सर। ठीक है। Yes, sir. टाइम अभी और बचा है नहीं, 3 मिनट बचा है, तो मैं आज चालू नहीं कर रहा हूँ। मैं चालू करूंगा मॉड्यूल नंबर 1 फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन मंडे। एंड मंडे में 2 क्लास लूंगा। एक्चुअली लास्ट मंडे तो जेजी सर ने लिया था मेरा क्लास, तो मैं जेजी सर का एक क्लास है, सेकंड क्लास, हाँ सर. दैट ऑल्सो आई विल टेक। और मेरा जो लास्ट क्लास है मंडे का, ठीक है, 3 से 4 मतलब 10:20 to 11:20 जेजी सर का क्लास, दैट आई विल टेक। एंड माय ओन क्लास फ्रॉम 3 to 4 दैट आई विल टेक। सो मंडे से हम चालू कर देंगे मॉड्यूल नंबर 1, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 Okay, sir. मॉड्यूल Okay, sir. नंबर 1 कहानी है पूरा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो मतलब कमिंग वीक में ही हम ट्राई करेंगे कि मॉड्यूल नंबर 1 खत्म कर देंगे, क्योंकि पूरा कहानी है। एट लास्ट आपको कहानी किताब से देख के उसको पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग नेक्स्ट वीक खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीक से मॉड्यूल नंबर 2 चालू कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। Okay, sir. यस सर। ओके। सब लोगों ने लिख दिया तो अटेंडेंस? अगर कोई छूट sir. गया है, प्लीज गिव योर हाँ, sir. अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, नेम एंड क्लास रोल नंबर, ठीक। यस सर। हाँ सर. ओके। और बाकी लोग अब बताओ, पेपर कैसा गया बाकी लोग का, सबका मैकेनिज्म का? सर अच्छा गया सर. बाकी लोग हाँ सर हाँ ठीक है। सर. ठीक है। पेपर हाँ, सर. इजी मतलब सिंपल ही था, जैसा जैसा कराया गया था उस टाइप का ही आया है, कोई तो चेंज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ मतलब टफ आ गया या कुछ आ गया, इजी पेपर ही था, ठीक है। हाँ सर। हाँ, चलो बाकी इस सेमेस्टर में बाकी सब्जेक्ट्स बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सब्जेक्ट्स हाँ सर चल तो रहा है है. सर, देखते हैं। किसी में बोर तो नहीं लग रहा है? बोरिंग सब्जेक्ट है एकदम, कहानी वाला सब्जेक्ट है ऐसा कुछ? नहीं सर अभी तो पूरा नहीं पढ़ा। ओह अच्छा, अभी क्या क्या सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, मतलब मैकेनिकल का सब्जेक्ट क्या क्या है? सर ऑपरेशनल रिसर्च. अरे गेट का नहीं, गेट का छोड़ के, ईएसपी छोड़ के जो मेन सब्जेक्ट्स है, ईएसपी तो वो तो अलग है गेट का, ईएसपी छोड़ के। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स जो आपका है, हाँ, डायनामिक्स ऑफ मशीन से, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, हाँ ठीक है। और कोई डायनामिक्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ मशीन से, मशीन, हाँ, हाँ, बस ये 3 ही मेन सब्जेक्ट होगा। और एक इलेक्ट्रिकल मशीन। हाँ, इलेक्ट्रिकल तो मैकेनिकल का थोड़ी ना है। हाँ ठीक है। तो ये जो डायनामिक्स ऑफ मशीन, मैं इसमें बोल देता हूँ डायनामिक्स ऑफ मशीन, क्योंकि ये भी डिजाइन का ही पार्ट है, तो मैं इसमें एक चीज बोल देता हूँ। डायनामिक्स ऑफ मशीन में आप ट्राई करो वो किताब लेने का, एसएस रतन, थ्योरी ऑफ मशीन, वो जो आपने पढ़ा है ना अभी 4th सेमेस्टर में, थ्योरी ऑफ मशीन, एसएस रतन, वही आपको काम आ जाएगा डायनामिक्स ऑफ मशीन में भी। एक्चुअली क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, थ्योरी ऑफ मशीन 1, थ्योरी ऑफ मशीन 2। थ्योरी ऑफ मशीन 1 मैकेनिज्म, जो कि आप पढ़ चुके हो 4th सेमेस्टर में। थ्योरी ऑफ मशीन 2 दैट इज डायनामिक्स ऑफ मशीन, ठीक है। रतन में आपको एकदम भंडारी जैसा ही किताब है,
ठीक है, 10 से 15 प्रॉब्लम मिलेंगे, एकदम सॉलिड प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप खुरमी गुप्ता भी उसमें किताब उसको रिफर कर सकते हो, बट वही है कि उसमें आपको फिर मतलब कुछ मतलब 2-3 एग्जांपल के बाद आपको फिर रिपीट मिल जाएंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, Oh, yes, sir. और जो Yes, sir. मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी कहानी तो है इस सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल्स भी होगा लेकिन कहानी भी होगा, मैक्सिमम कहानी होगा। हाँ सर। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. सेकेंड लेक्चर तो हम लोग फिर चालू करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 से। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। Yes, sir. Make Thank you, sure sir. you have given the attendance. If you have Thank you, sir. missed, please give the attendance in the chat box. Thank you. Yes, sir.